to discuss about the how we have to choose the cost and effective solution for the transportation. So we have to understand about the requirement for our business. Suppose agar आपका business is working for the lean one, cost optimization one, so your service level will be different from the other business strategy actually. So अगर आपका business responsive side के ऊपर है, so they are means कि they have a high service level, so आपका जो lead time है वो different है. So if we have already learned in our class, there is always a trade off actually. So cost जब आप choose कर रहे होते हैं तो basis of your service level करते हैं. Suppose good, fast, cheap, we cannot choose all three in the one go. So there is always be a trade off. सो गुड और फास्ट होगा तो डेफिनेटली वो चीप नहीं होगा. इस प्रोस्पेक्ट से द इम्पोर्टेंट फैक्टर इज अबाउट द टाइमिंग ऑफ योर शिपमेंट. यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द टाइमिंग ऑफ योर शिपमेंट. टोटल टाइम कितना है और वो टाइम इंटरवल जो आपको शिपमेंट एट द डोर स्टॉप स्टेप लाने पे या वेयर हाउस में लाने पे लग रहा है. Second thing is about know your shipment actually. We have all know about the know your customer, know your supplier. So it's also about the know your shipment. शिपमेंट का वेट कितना है, डायमेंशन कितनी है और किस तरह से कंसोलिडेट होकर शिपमेंट आ सकती है. The second point is about details. So you should have to know about the each and everything about the detail. See total cost के ऊपर नहीं आना. That's we've also learned in our class. So we have to go through their loading charges, unloading charges, damages, detention, and whatever the charges जो वहाँ पे include होंगे, right? So devil is in the detail. So you will always find the insightful detail in your cost. The second detail is about the agile. Agile is a combination of the lean and the agile. So lean means you need to be cost optimized है. जो वेस्टेजेस हम आपको रिमूव करनी है. एजाइल में you have to fast in order to take actions accordingly. So आपका शिपमेंट एलसीएल के ऊपर फिट हो रहा है, लेजन कंटेनर फिट के ऊपर है, एफसीएल के ऊपर है, डेंस कार्गो है, ब्रेक बल्क है, रोरो वेसल है. So which type of the vessel are you going to choose? So building relationship, leveraging data to negotiate the terms. So once you know all these details, so you have a better control on the negotiation on the table. So you can always do the better rate negotiation with the vendors. So data governance के अंदर हमारे पास क्या है? This there is not one lead time on your system. Yes, ट्रांजिट टाइम अगर सपोज सी का है तो 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज तक जाता है. ड्यू टू द रेड सी क्राइसिस की वजह से लीड टाइम 12 to 15 डेज इनहांस हो चुका है. सो डेफिनेटली आपका जो सर्विस लेवल है वो भी अकॉर्डिंगली इम्पैक्ट क्रिएट करेगा. ट्रांजिट टाइम फॉर द एयर के अंदर मैक्सिमम ट्रांजिट टाइम 3 डेज का होता है. तो इसके अंदर आपका इन ट्रांजिट टाइम भी हो सकता है वो टाइम जो कि आपका कहीं स्टे ओवर हो रहा है. सपोज अगर आप शिपमेंट यूएस से वाया दुबई मंगा रहे हैं, वाया तुर्की मंगा रहे हैं, तो लीड टाइम कैन बी 5 days और 8 days. बट द लीड टाइम इज ऑलवेज बी लेस देन एज कम्पेयर टू सीट टाइम. सिमिलरली आपका जो अरेंजमेंट है फ्रॉम द दिस साइड इज फॉर द शिपमेंट, राइट, फ्रॉम सप्लायर साइड, एंड दिस साइड इज फॉर द योर डेस्टिनेशन साइड. So we need to be very very careful when we are choosing our shipment. What is your Incoterm? That we will discuss later on as well. So if if you are going to choose the Xworks, then what will happen actually? So Xworks के अंदर मतलब it means कि you have to responsible for export clearance as well as the import clearance. So Xworks के अंदर क्या है कि आपने अपने वेंडर के पास से मटेरियल उठाना है और उसको आपने लेके आना है आपने अपने वेयर हाउस तक. ठीक है, तो दिस ऑल गोज इनटू द Xworks एक्चुअली. So So similarly DDP, Duty Delivered Paid To. So अगर DDP है तो इसका मतलब है आपके सप्लायर ने आपकी डोर स्टेप के ऊपर चीजें डिलीवर करनी है, राइट. The second thing is about know your cargo, know your shipment actually. So आपका pallet size क्या है? There are the different pallet size, Euro, UK, Mini, and these are the dimension for the pallet side. And this is a very important for your MCQs as well. Number of layers on the pallet, how many layers of the you can utilize in your pallets. अगर आपके पास load ज़्यादा है और system allow कर रहा है आपको, so definitely you have to use the full load actually. अगर आपके पास load कम है और full pallet नहीं हो रहा, then you have to go for the another options. Number of layers on the pallet, are pallet stackable? क्या pallets के ऊपर pallet हम stack कर सकते हैं? नहीं कर सकते. Similarly जो हम
कार्गो का साइज, ट्रक का साइज देख रहे होते हैं कि कैलकुलेटिंग लोडिंग वैल्यू कितनी है। सो ये इसके दो फॉर्मूले हैं, पैलेट इन मिलीमीटर इन मीटर्स, पैलेट इन वेट इन मीटर डिवाइडेड बाय 2.4, राइट। एंड सिमिलरली जब आप एयर शिपमेंट में जाते हैं तो एयर शिपमेंट देयर आर टू टाइप ऑफ द एयर शिपमेंट, वन इज द normal air shipment and second is the courier one. So length, width, height in centimeter divided by the 5,000. 5,000 is nothing but is the certain conversion value in the kg. So 5,000 का मतलब है तो ये ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, तो कोरियर इज ऑलवेज भी एक्सपेंसिव वन। 6,000 का मतलब ये है कि आपके पास लेस एक्सपेंसिव है टू द 5,000। सो नॉर्मली ग्लोबल लेवल पे जो यूज होता है वो 5,000 6,000 हो रहा होता है। सो जब आप कैलकुलेशन देख रहे होते हैं एयर की, सो आप ये फैक्टर डिटरमाइन करते हैं अपने एयर फ्रेट वाले से कि आप कौन सा फैक्टर ले रहे हैं इन ऑर्डर टू डू द कैलकुलेशन। इस प्रेजेंटेशन क्लास में एक छोटा सा कैलकुलेशन भी करेंगे वेयर यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द एयर फ्रेट कैलकुलेशन। सो आपने फर्स्ट टाइम लीड टाइम को पता लग गया, रिक्वायरमेंट पता लग गई कि शिपमेंट एयर से जाएगी सी से जाएगी, आपको अपनी शिपमेंट के बारे में पता लग गया। अब नाउ इट्स कम टू द कॉस्ट एक्चुअली। सो इट वेरी डिटेल इंसाइटफुल स्लाइड्स, और इसके अंदर काफी सारी चीज अवेलेबल हैं जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में बहुत मुश्किल होता है डिटरमाइन करना। सो दिस इज द थैंक्स टू द ओवर वन ऑफ स्टूडेंट मिस्टर एंड कोलीग मिस्टर रशर आलम, ही he prepared this slide for us actually। सो इसके अंदर हमारे पास क्या है, क्लियरेंस सर्विस चार्जेस ओनली। तो यहाँ पे हमें चार्जेस नजर आ रहे हैं। अब इसके नीचे ये तमाम हिडन चार्जेस हैं जो कि हम पे कर रहे होते हैं, लाइक शिपिंग लाइन चार्जेस। आपने दो तीन शिपिंग लाइन से काम कर रहे हैं तो आपके पास कंपैरिजन आ जाएगा, एक अगर 10,000 चार्ज कर रहा है, दूसरा 5,000 कर रहा है। सो देर स्ट्रेट फॉरवर्ड निगोशिएशन अपॉर्चुनिटी। सिमिलरली डिटेंशन चार्जेस कितने हैं, अगर एक 15 डेज डिटेंशन दे रहा है, 25 डेज दे रहा है, तो डेफिनेटली आपके पास 25 डेज में ज्यादा रूम है इन ऑर्डर टू सेव योर कॉस्ट। इंडोर्समेंट फीस कितनी है आपके पास, लोडिंग फोर्क लिफ्ट की प्राइसेस कितनी है, रेगुलेटरी होल्ड कितना है, कार पेंटर चार्जेस कितने हैं, लेबर चार्जेस कितने हैं, इंटेलिजेंस होल्ड, टर्मिनल चार्जेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट। सो ये हमारा आइसबर्ग के जो टिप के अंदर आपको क्लियर से चार्जेस नजर आ रहे हैं, बट जब आप इसके बॉटम में जाएंगे तो देयर लॉट ऑफ थिंग दैट आर इनसाइडफुल। तो अमूमन क्या होता है कि चार्जेस आपको कम नजर आते हैं, ठीक है। जब आप उसको मिसलेनियस चार्जेस में जाते हैं तो आई थिंक वो चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जब भी आप अपनी ट्रांसपोर्टेशन सेलेक्ट करें फ्रॉम योर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, सो यू शुड हैव टू नो अबाउट द एंड टू एंड कॉस्ट। लेफ्ट साइड के अंदर सम इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन है आई थिंक, जो आप लोग के लिए आगे काम आने वाली है, राइट। सो इफ योर शिपमेंट इज अ सीएफआर शिपमेंट देन ऑलवेज आस्क अबाउट द डेस्टिनेशन चार्जेस एंड डेस्टिनेशन एजेंट। अमूमन क्या होता है कि जब हम जाते हैं सीएफआर के ऊपर, सो हमारे जो चार्जेस हैं, राइट, वो चार्जेस हमारे क्या हो जाते हैं, फ्रेट के इंक्लूड हो जाते हैं, और हमारी असम्पशन ये होती है कि हमारे पोर्ट के ऊपर मटेरियल आ रहा है तो हमारी कॉस्ट कम होगी। बट जब डेस्टिनेशन चार्जेस और डेस्टिनेशन एजेंट चार्जेस आपको बताता है तो इट्स समटाइम टू फोल्ड और थ्री फोल्ड ऑफ द एफओबी। सो दिस इज ऑलवेज वेरी क्रिटिकल, जब आपके पास सीएफआर शिपमेंट हो तो यू शुड हैव टू नो अबाउट इट। सिमिलरली अगर आपकी शिपमेंट एक्सवर्क्स है तो यू शुड हैव रिक्वेस्ट फॉर द एफसी है। एक्सवर्क्स और एफसी में क्या फर्क होता है कि एक्सवर्क्स के अंदर आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्लियरेंस आप करा रहे होते हैं, एफसी के अंदर एक्सपोर्ट क्लियरेंस आपका सेलर करा रहा होता है, और आप उसके शिपमेंट उसकी जो भी लोकेशन है वहां से लिफ्ट करके अपने टर्मिनल पे लेके आ रहे होते हैं, एयरपोर्ट की साइड पे या सी पोर्ट के ऊपर, और थ्रू द योर मैन वेसल या प्लेन के थ्रू आप अपने डेस्टिनेशन पोर्ट के ऊपर लाते हैं, राइट। अगर इसी तरह के पास आपके पास एफसी है तो यू शुड हैव टू नो अबाउट द लोकेशन। अगर आपके पास एफओबी अगेन देन द लोकेशन ऑफ द वेयर हाउस, कहाँ से है और कहाँ से ये मूव होगा। अगर आपके पास डीडीपी है तो यू what sort of the DDP is it? The DDP, VAT, value added tax, GSC, GST is आपके पास जनरल सेल टैक्स इंक्लूडेड है या इंक्लूसिव, और डीडीपी नॉन एक्सक्लूसिव ऑफ द वैट। सो ये बड़ा क्रिटिकल है, आपको डीडीपी शिपमेंट के बारे में बता दिए गए, बट जब आपके पास रिप्लेसमेंट या वारंटी के अंदर मटेरियल आते हैं तो देन यू केम टू नो कि सारी ड्यूटीज और दूसरे फैक्टर्स हैं वो आपने ही बेयर करने हैं। एनालिसिस टर्मिनल परफॉर्मेंस, शिपिंग लाइन चार्जेस। अगर आपके पास टर्मिनल के अंदर परफॉर्मेंस के ऊपर सपोज अगर पोर्ट कासिम पे आ रहा है, किमाड़ी पे आ रहा है, दुबई फ्री जोन पे आ रहा है, या किसी और पोर्ट पे आ रहा है, और वो आपके पास पोर्ट कंजेशन उस पोर्ट के ऊपर है, सो अगेन आइडियली आपका वैसल होल्ड होगा, आपके पास डैमेज डिटेंशन के चार्जेस बढ़ेंगे और आपकी कॉस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ेगी होगी। सो यू ऑलवेज बी आर वेरी वेरी कॉशियस व्हेन यू आर गोइंग टू सिलेक्ट द टर्मिनल।
सिमिलरली आपको चेक करना है इफ देयर आर चेक इफ देयर आर क्रॉस पिल्फरेज इन द क्रॉस डॉकिंग। तो आपके पास कोई पिल्फरेज वाले एलिमेंट तो नहीं है, क्योंकि जस्ट वेरी कॉमन पोर्ट से जब आपकी चीजें मूव होती हैं क्रॉस डॉकिंग के अंदर, ये शिपमेंट जब मूव होता है तो देयर ऑलवेज बी द चांसेस कि आपकी प्रोडक्ट पिल्फरेज हो जाए, मतलब कि चोरी हो जाए, या कोई आपको रिप्लेस कर दे विद द सम अदर प्लेस, या डब्बे से मटेरियल निकाल लें और डब्बे को अंदर रख दें। तो दैट ऑल थिंग हैपनिंग थ्रू आउट द ग्लोब, दैट्स नॉट ओनली फॉर द पाकिस्तान सिनेरियो। अब हम थर्ड उसके ऊपर आते हैं, FCL फुल कंटेनर लोड। तो वी हैव ऑलरेडी लर्न ऑल दिस थिंग, दिस इज ओनली फॉर द रिफ्रेशर। शिपर है हमारे पास, कंटेनर आया, कंटेनर लोड हुआ, लोड होके कंटेनर यार्ड पे आया, कंटेनर यार्ड से शिपिंग लाइन के थ्रू मैरिड टाइम शिपमेंट में मूव हुआ, शिपमेंट फिर डेस्टिनेशन पोर्ट पे आया, अनलोडिंग हुई, और उसके बाद कंटेनर मूव हुआ इन योर पोर्ट, और ये कंप्लीट साइकिल हो गया FCL। LCL की थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेस देन कंटेनर लोड। इसके अंदर आप कंसोलिडेट करते हैं शिपमेंट को, जो भी आपके पास CFS स्टेशन होते हैं, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, और उसके बाद वहां से आप कंटेनर पे लोड करते हैं, इस एरिया को वैनिंग कहलाते हैं, फिर कंटेनर यार्ड में आता है, फिर ये मैरी टाइम ट्रांसपोर्ट पे जाता है, फिर कंटेनर यार्ड एंड अगेन फिर ये सेम सिलेक्शन होता है, कंटेनर CF स्टेशन पे आता है, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, वहां से शिपिंग की सेग्रीगेशन होती है, और आपके पास आपकी सब्सिक्वेंट लोकेशन के ऊपर मटेरियल पहुंच जाता है विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेट फॉरवर्डर। This is, and next slide we have to discuss about the different types of the container that we have used, dry type container box, bulk container, refer, ISO tank। तो ये जो जितने जितना आपके पास अदर देन नॉर्मल कंटेनर होगा 20 फीट 40 फीट, सो आपकी कॉस्ट भी डिफरेंट होगी, बिकॉज जो स्पेशलाइज्ड कंटेनर होगा उसकी कॉस्ट हाई होगी। सपोज अगर रेफर है तो इसका मतलब है इसमें आपको रेफ्रिजरेशन की रिक्वायरमेंट, टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। ISO का टैंक है तो इसके अंदर गैस आपकी कोई चीज मूव हो रही है, लिक्विड मूव हो रहा है, गैसियस मूव हो रही है, तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। तो जो आपके पास स्पेशलाइज्ड टाइप के कंटेनर होंगे उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल 20 फीट एंड 40 फीट। अच्छा, जब हम एयर फ्रेट की बात करते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू स्प्लिट इन our टॉपिक into two types. One is the which factor are important when we are calculating the air freight, and which factor are important for the sea freight. तो जब हम एयर फ्रेट के अंदर बात करेंगे तो पहले फ्रेट रेट्स है। फ्रेट रेट्स के आपके पास डिस्टेंस कितना है, वेट कितना है, यहाँ से फ्रेट रेट्स आ जाएंगे आपके पास फ्रेट रेट्स। फिर आपके पास फ्यूल चार्जेस आ जाएंगे, इम्पैक्ट ऑफ द ऑयल प्राइसेस, सीजनल एडजस्टमेंट। तो अमूमन क्या होती है, जो रेट्स होते हैं वो टैग होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द फ्यूल चार्जेस, और अकॉर्डिंगली वो मूव